Hello students, welcome to MEC, Meta Education channel, where you can change the way of your learning and understanding. Today we are going to study last application of Gauss theorem, that is calculation of electric field due to uniformly charged thin spherical shell. So let's study about it. Here I have a spherical shell जो अंदर से खोखला है, that is like a hollow sphere. So that means all the charges are distributed uniformly on the surface of this shell like this. मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है और सारा का सारा चार्ज शेल की सरफेस पे है. Where this capital R is radius of shell. Now, if Q is the total charge on this shell, suppose this total charge is Q, then surface charge density sigma, that is charge upon area, total charge है Q and total surface area of this sphere is 4 pi capital R square. Now here I have to calculate electric field at 3 points due to this uniformly charged sphere. First, outside the shell. Second, at a point lies on the surface of the shell. And third, when point lies inside the shell. तो इन 3 पॉइंट्स पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. नाउ इफ यू रिमेंबर, in first 2 applications of Gauss theorem we have followed 3 steps to calculate electric field. First, selection of Gaussian surface, एक ऐसी सरफेस जो अपने अंदर चार्ज इनक्लोज करे और उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम. एंड इन दिस केस योर गॉसियन सरफेस इज आल्सो स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि चार्ज स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे इनक्लोज करने वाली गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल होनी चाहिए. नाउ स्टेप सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. First by using this formula and then using this formula. And step 3 is equate both these flux, because according to Gauss theorem these flux must be equal. Now I will follow the same procedure in this case. So case 1, when point lies outside the shell. Here P's are observable point which is at a distance small r from the center of the sphere. और मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. अब हमें पता है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए. So here I have to draw a Gaussian surface which is cylindrical in shape of radius small r, like this. Like this. अब step 1 तो complete हुआ, Gaussian surface हमने draw कर ली. Step 2, calculation of electric flux from this Gaussian surface. First using this formula, integral E vector dot ds vector, where ds is small area element on the Gaussian surface like this. Now at this area element यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ. आल्सो एरिया वेक्टर वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लाइक दिस. सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ लाइज इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा की वैल्यू आई 0. अब यहाँ पे इंटीग्रल डॉट प्रोडक्ट था तो यहाँ पे आएगा ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, और थीटा इस केस में कितना है हमारा 0, तो यहाँ पे आएगा कॉस 0.
और cos 0 होता है हमारा 1. So flux is integral E ds. Now we know everywhere on the Gaussian surface electric field have constant value. तो ये तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा ds का इंटीग्रल. और ds का इंटीग्रल हमें क्या बताएगा? अगर ऐसे मैं छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स को ऐड करूंगा तो वो मुझे बताएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर. तो ds की इंटीग्रल मुझे बताएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस. क्योंकि ये एरिया एलिमेंट कहां पे पड़ा है? गॉसियन सरफेस पे पड़ा है. सो फ्लक्स कम्स आउट टू बी E टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन शेल विच इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. यहां पे मैं स्मॉल r लूंगा क्योंकि इस गॉसियन शेल का रेडियस क्या है? स्मॉल r. तो दिस इज योर फ्लक्स. Also flux is equal to 1 upon epsilon naught times net charge enclosed by this Gaussian surface. अब इस Gaussian surface के अंदर कितना चार्ज है? जितना इस शेल के ऊपर होगा. और इस शेल पे टोटल चार्ज था हमारा Q. तो नेट चार्ज enclosed by Gaussian surface is Q. तो फ्लक्स आई 1 upon epsilon naught times Q. Now according to Gauss theorem these both flux are equal. तो इनको इक्वेट करते हैं. तो यहां से देखो E इंटू 4 पाई r स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन अपसाइलन नॉट टाइम्स Q. यहां से E की वैल्यू आई 1 बाय 4 पाई अपसाइलन नॉट Q बाय r स्क्वेयर. सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल. अब अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता था? E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q. नीचे चार्ज और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. अब अगर मैं ये सारा Q चार्ज जो सरफेस पे पड़ा है उसे उठाकर सेंटर पे रख दूं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आएगी? 1 by 4 pi epsilon naught सारा चार्ज Q और सेंटर पे रख दिया था तो पॉइंट P और सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है हमारा R. तो यहां पे आएगा R स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. तो इसका मतलब क्या है कि चाहे शेल के सरफेस पे चार्ज पड़ा हो चाहे शेल के सेंटर पे चार्ज पड़ा हो दोनों का इफेक्ट बाहर वाले पॉइंट पे क्या होगा? सेम. क्लियर है ये पॉइंट? अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये पॉइंट P कहां पे होगा? सरफेस पे. तो केस सेकंड when point P lies on the shell. तो अब ये पॉइंट P इस शेल के ऊपर होगा लाइक दिस विच इज पॉसिबल ओनली अगर ये R जो डिस्टेंस था वो किसके इक्वल हो जाए? इस कैपिटल R के. तभी ये पॉइंट P यहां से सरफेस पे आएगा. सो इन दिस केस योर स्मॉल r दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल R दैट इज रेडियस ऑफ दिस चार्ज्ड शेल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी हमारी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर वहां पे R की जगह अब हम कैपिटल R यूज करेंगे तो आंसर आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस के पॉइंट पे. अब अगर यहां पे देखो तो यहां से Q की वैल्यू आएगी ये 4 पाई R स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर. इस Q की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो E की वैल्यू आई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर नीचे R स्क्वायर. ये R स्क्वायर के साथ R स्क्वायर कैंसिल 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So this is your another way to calculate electric field on the surface of uniformly charged spherical shell. Now case 3 when point lies inside the shell. तो अब पॉइंट जो है वो शेल के इनसाइड है. अब हमारा जो P पॉइंट होगा वो शेल के अंदर आएगा लाइक दिस. So in this case
your distance of point from center is smaller than radius of shell. अब अगर पॉइंट अंदर है तो गॉसियन सरफेस भी अंदर ही बनेगी लाइक दिस. तो इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं. फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस. अब डी एस है एरिया एलिमेंट, यहाँ पे होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे थी और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही बाहर की तरफ होगा. तो इस केस में भी थीटा की वैल्यू आएगी हमारी 0. तो फ्लक्स आई ई डी एस कॉस 0. अगेन cos 0 1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट होती है तो वो बाहर आ जाएगी. अंदर बचेगा सिर्फ ds का इंटीग्रल, और ds का इंटीग्रल फिर हमें क्या बताएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस विच इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. Also flux is equal to 1 upon epsilon naught times net charge enclosed by this Gaussian surface. अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि सारा चार्ज तो इस स्फीयर के ऊपर पड़ा है, अंदर तो कोई चार्ज था ही नहीं. तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, 0. तो यहाँ पे नेट चार्ज की जगह आएगी वैल्यू 0. दैट मीन्स फ्लक्स भी कितनी होगी, 0. अब इन दोनों फ्लक्स को अगर इक्वेट करेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस E is equal to 0. That means electric field inside the shell is 0 everywhere. अंदर electric field कितनी होगी, 0. Now from the 3 different observations we summarized that when R is less than capital R, मतलब जब आपका पॉइंट शेल के अंदर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0. सेकेंड, when R is equal to capital R, जब आपका पॉइंट शेल के ऊपर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R का स्क्वायर. एंड थर्ड, when R is greater than capital R मीन्स जब आपका पॉइंट शेल से बाहर था तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. So from these two we observe that इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. अब सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, अंदर सारी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी. इसका मतलब सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी. इट मीन्स सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम. नाउ आई विल शो दिस वेरिएशन ग्राफिकली. दिस इज योर होलोस्फेरिकल शेल जिसका रेडियस है कैपिटल R. वाई एक्सिस बता रही है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और एक्स एक्सिस बता रही है मुझे पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस शेल. नाउ इन दिस रीजन व्हेन योर पॉइंट्स डिस्टेंस इज लेस देन द रेडियस ऑफ दिस शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, 0. तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी तरफ क्या होगी, 0. जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे जहां आपका R कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, वहां पे थी हमारी मैक्सिमम वैल्यू. तो सपोज दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, हियर इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सरफेस पे इतनी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी लाइक दिस. सो दिस इज अ रीजन वेयर R is greater than capital R. So this figure shows variation of electric field with distance in case of uniformly charged spherical shell. So that's all for today. With this we have completed all the applications of Gauss theorem. In my next video we will start new chapter of unit 1, that is electric potential. So please keep supporting us, like and share my videos, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना. Thank you.